Hello everyone, how are you all? So guys, today I am going to start a future tense. As you know very well, earlier I taught you the present and past. Okay, both of the tense you have seen on my channel. Alright, now today we are going to start future indefinite tense. What do you understand by future? Future means tomorrow, the coming time, आने वाला समय जिसको हम कहते हैं, और tomorrow indicates this, यानी आने वाला कल, कि जो भी काम हम अभी कर रहे हैं वो काम नहीं, जो कर चुके हैं या हमने पहले किया है वो नहीं, means जो अब हम करेंगे, right? And the identification of this tense is ga, gi, ge. ठीक है, वह आएगी, वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पानी पिएगा, वह मुझे डांटेगा. तो ये सब क्या हो गया? गा, गी, गे. आप देखिए सब एंड में गा, गी, गे means this is future tense. All right, this is future indefinite tense and we can also call it simple future. So guys, first of all, we will talk about the helping verb. Okay, subject, will helping verb we use here, but earlier we read that two helping verbs in future tense, that is will and shall, but nowadays shall is not used as helping verb. Shall considered as a model only. Okay, so whatever we have singular, whether it is subject is singular or plural, we use only will. Means हमें will का ही use करना है, whether subject is plural or singular. ठीक है, I am repeating again कि shall का use पहले होता था. ठीक है, पहले हम ग्रामर में पढ़ते थे तो वहाँ shall का use होता था और उसको include किया गया था, but अब shall का use एज अ मॉडल ही होता है. और इन दिस टेंस वी यूज ओनली, क्योंकि शैल का यूज हम किसके साथ करते थे? आई एंड वी ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल हम विल का ही यूज करते थे. ठीक है, शैल का यूज केवल आई और वी के साथ, बट नाउ डेज वो भी यूज खत्म हो गया है बिल्कुल. ओके, सो नाउ लेट्स सी सेंटेंस पैटर्न हियर. सब्जेक्ट, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, object. This is affirmative. Now negative, subject, will, not, verb plus first form or object. We always use first form of verb in this tense. Interrogative, will, subject, verb first form, object. ये कौन सा है जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है? ओके, क्वेश्चन that starts from the helping verb. And the next is WH word, जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है. WH word, will, subject, verb first form, object. Next is interrogative, means क्वेश्चन तो पुट अप किया ही जाता है, as well as work is not going there, काम भी वहाँ नहीं होता है. तो अब यहाँ देखिए इंट्रोनेगेटिव का फर्स्ट वाला जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब वाला, will, subject, not, verb first form, object. इसको हम दूसरा जो मेथड मैंने आपको बताया था, I told you before, you can use that also. तो will को हम अगर not में merge कर दें तो क्या होगा? want, willn't नहीं होगा. ठीक है, अगर हमने will को not में merge करना है तो वो want होगा. ठीक है, like this, want. okay, so फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? won't, subject, verb first form, object. ऐसे ही इसमें WH वर्ड, won't, subject और not को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हम not नेगेटिव सेंस जो हमें वर्ड दे रहा है वो हम इधर हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड कर चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द एग्जांपल्स. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि थ्रू द एग्जांपल्स
you may understand very well. So let's start from there. वह कल यहाँ आएगा. What type of sentence is this? Negative, interrogative? This is affirmative. वह कल यहाँ आएगा. तो let's translate it, and the structure is this. Subject. So first of all, he. Then you can see a helping verb, will. He will, and verb first form, come. He will come. अब कहाँ पर? Here. अब कब आएगा? Tomorrow. Tomorrow. He will come here tomorrow. वह कल यहाँ आएगा. नेगेटिव होगा, वह कल यहाँ नहीं आएगा. राइट. नाउ तुम फूल नहीं तोड़ोगे. तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है वहां पर. ठीक है. तो वी हैव टू फॉलो दिस. सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट? यू, विल, नॉट, प्लक. फूल तोड़ने को क्या बोलते हैं? प्लक. प्लक फ्लावर्स. यू विल नॉट प्लक फ्लावर्स. नेक्स्ट इज हम एक साथ बैठेंगे. व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज अफर्मेटिव. तो हम एक साथ बैठेंगे. तो सब्जेक्ट क्या है? अगेन वी हैव टू फॉलो दिस. सब्जेक्ट वी, फिर विल, फिर sit together. तो we will sit together. Now next, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी. This is also affirmative. Subject I will. अब verb क्या है यहाँ पे? हमें यही फॉलो करना है. Verb is wait करना, राइट? तो I will wait. अब तुम्हारा, तो यहां पे हम लिखेंगे I will wait for you. नेक्स्ट इज, पहले इधर आते हैं. क्या वे तुमसे बात करेंगे? तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज? इंटेरोगेटिव है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. दिस वन वी हैव टू फॉलो दिस. तो सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट. तो दे, यहां पे वे है तो दे सब्जेक्ट है. ठीक है. विल दे. अब अगेन वर्ब, वर्ब क्या है? बात करना. तो टॉक. अब लास्ट में क्या बचा? तुमसे. तो विल दे टॉक टू यू. राइट. विल दे टॉक टू यू. कुछ लोग गांव में क्यों रहेंगे? अब यहां देखिए, जो क्वेश्चन जिससे हमें पता लग रहा है कि दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी में, वो यहाँ इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है. तो आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हेन वी आर हैविंग अ क्वेश्चन वर्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी सेंटेंस, तो वी हैव टू स्टार्ट विथ दिस वर्ड ओनली व्हेन वी ट्रांसलेट इट. ओके. तो सबसे पहले वाई, तो वी हैव टू फॉलो दिस WH वर्ड. तो हमने वाई लिख दिया. देन विल, सब्जेक्ट कुछ लोग, सम पीपल. सम पीपल यानी कि ये दोनों ही वर्ड सब्जेक्ट हैं. कुछ लोग, सम पीपल, बिकॉज सब्जेक्ट में कंसिस्ट वन और टू वर्ड. मतलब वन वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, टू का भी हो सकता है, थ्री का भी हो सकता है, मोर देन वन सब्जेक्ट भी हमारा हो सकता है. तो वाई विल सम पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया. आफ्टर दैट अब वर्ब क्या हो रहा है? वह कुछ लोग गांव में क्यों रहेंगे? रहेंगे मतलब लिव. तो लिव. तो वाई विल सम पीपल लिव. अब कहां पर? गांव में. इन विलेज. राइट. इन द विलेज. In the village? Question mark.
नाउ सी, कम टू दैट, क्या वे नहीं आएंगे? तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? इंट्रो नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले विल, फिर दे नॉट कम, विल दे नॉट कम, या हम वॉन्ट के साथ भी बना सकते थे इसको, वॉन्ट दे कम। ऑलराइट, हम इस वॉन्ट को भी यूज कर सकते थे, वॉन्ट दे कम, तो हम फिर वहां नॉट नहीं लगाते। ऑलराइट, ऐसे ही है रीता कहाँ नहीं खेलेगी, तो रीता, अब यहां देखिए WH वर्ड बीच में आ रहा है हिंदी में, तो यहां इसी से स्टार्ट करेंगे, वेयर, विल, अब सब्जेक्ट आ गया, रीता नॉट प्ले। So guys, this is the future simple tense, or we can say future indefinite tense. I hope you all understood very well, right? If you haven't subscribed my channel, so please subscribe and share it. All right, and if you have any confusion regarding to any topic earlier जिनको मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर कुछ भी आपको उसमें confusion है तो you can ask me and write in comment box. Okay, till then, goodbye.